Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nawada. Today we are going to start new chapter, that is microorganism, friend and foe. This is the first video lecture. So before directly jumping into the chapter, first we should understand the heading. Microorganism. Organism word means living organism, and micro means very small, means organism that are very small are called microorganism. Some point और कुछ बात और बोल दें इसमें. Microorganism that are too small, इतना छोटा, to be seen by our naked eye is called microorganism. Means organism that cannot be seen by our naked eye. Naked eye कहने का मतलब है सिर्फ आंख से हम उसको देख नहीं सकते हैं. अगर उसको देखना है तो हमको कोई मदद चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए. लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है, माइक्रोस्कोप हो सकता है. सो दीज आर कॉल्ड एड और इंस्ट्रूमेंट. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Organism that cannot be seen by naked eye and can seen only through microscope is called microorganism. Means इतना छोटा कि हम उसको देख भी नहीं सकते हैं. These microorganisms are literally invisible for us. It cannot be seen by us, especially with the help of eyes only. Yes, if you want to see, you can see them with the help of microscope. Sometimes, for example, fungi can be even seen with the help of magnifying glass. So these are called microorganism, which cannot be seen by our naked eye is called microorganism. Friend means useful to us. दोस्त किसको कहते हैं? जो हमारे काम आता है. And foe means something which is related to enmity, means दुश्मनी. मतलब sometimes microorganism act as friend, sometimes it also cause disease or it harm us. It not only cause disease to us, it also spoil our food. हमारे फूड को जो खराब होते हैं, बासी हो जाना, सड़ जाना, ये सब में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ही है. तो कहीं ना कहीं वो दुश्मनी कर रहा है हमारे साथ. सो foe means something which is not beneficial for us, means harm to us. Enmity, दुश्मनी के सेंस में इसको कहा जा रहा है. Okay, so what is microorganism? I told you. What is microscope? Instrument that is used to magnify the image. किसी ऑब्जेक्ट, छोटे ऑब्जेक्ट के इमेज को, मतलब छोटे ऑब्जेक्ट के साइज को, मीन्स उसको बड़ा कर देना, मतलब ऑर्गेनिज्म को बड़ा नहीं करना, उसके इमेज को बड़ा कर देना इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. दिस इज डन बाय microscope. Okay, and the branch of science that deals with study of microorganisms are called microbiology. कुछ टर्म है, एक है microorganism. क्या है? organisms that can not be seen by naked eye and can only be seen through microscope is called microorganism.
ऑर्गेनिज्म। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहते हैं। अगर कहीं पे माइक्रोब्स लिखा हो तो भी समझिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही लिखा हुआ है। माइक्रोब्स, MICROBES, माइक्रोब्स। सो एक नया टर्म आया माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, इट इज an instrument that makes small things look bigger. It is an instrument that makes small things look bigger. देखने में बड़ा करेगा, उसको बड़ा नहीं कर देगा। मतलब इसका क्या मतलब है? That is magnifies object. ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब उसके इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी, branch of science that deals with the study of microorganisms is called microbiology. ठीक है? And the scientists, those who study about microorganisms are called microbiologists. Microbiologist. The scientist that study about microorganisms are called microbiologist. ठीक है? अच्छा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले कौन देखे थे? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक. The first person to see microorganism was Anton van Leeuwenhoek with the help of self-made simple microscope. So, Anton van Leeuwenhoek was the first person to see microorganism with the help of self-made simple microscope. ओके, सो इतनी सी बात है, याद रखनी होगी। व्हाट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म, व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोऑर्गेनिज्म को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिस साइंस में करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखने वाले पर्सन थे
एंटोन ल्यूवेनहुक। देखिए आगे जाकर हम आपसे बात करेंगे सेल में, तो सेल में हम बोलेंगे फर्स्ट सेल को देखने वाले कौन थे, तो रॉबर्ट हुक। बट जब हम बात करेंगे लिविंग सेल को देखने वाले, तो सबसे पहला लिविंग सेल देखा गया था वो था एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और देखा गया था किसके द्वारा, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, उनका अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। ओके, नेक्स्ट बात, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया कहां जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये लगभग हर जगह पाया जाता है। इवन कहीं भी आप चले जाइए, इवन इन द कोल्ड पोलर रीजन, इन द हॉट नियर द volcano there will be hot water spring, in that also microorganism will be found. It is found in the soil, in the water, in land, everywhere it is found, everywhere, almost everywhere. Even it is found inside our body, means it is also found inside our body, not our body, in animals body. It is also found on the surface, like any surface और surface of our body। हमारे हाथ के ऊपर भी अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अगर हम अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे को दिख जाएंगे। सो दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, कुछ बातें और, नॉट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल, means not all microorganism are harmful। जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब हार्मफुल नहीं है। सम आर वेरी यूजफुल टू अस, कुछ हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप इसी चैप्टर में पढ़िएगा, दही जमाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का काम यूज करते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ब्रेड बनाने में ईस्ट का यूज करते हैं, ये ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया जो पाया जाता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो चीज बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जरूरत होता है, कर्ड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जरूरत होता है। सो वेरी फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मींस हार्मफुल फॉर अस। हम क्या बोले, तीन कैटेगरी। पहला बोले मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज no useful to us, means they are harmless to us. Some of the microorganisms are useful to us, and very few of them cause diseases, and these disease causing microorganisms are called pathogens or germs। उसको क्या कहते हैं, pathogens और germs। so नेक्स्ट कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर completely harmless, कोई काम मतलब कोई नुकसान नहीं करता है। some microorganisms are useful to us। एक पॉइंट लिखना भूल गए ना, कहां कहां पाया जाता है। अच्छा, इसके बाद लिख देंगे, एंड very few of them cause diseases। These are called
पैथोजेंस और जर्म्स, इसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस और जर्म्स। क्या कहते हैं इसको? डिजीज causing microorganisms are called पैथोजन और जर्म्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डिजीज काउजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं या जर्म्स कहते हैं। Microorganisms are found almost everywhere, लगभग हर जगह पाया जाता है। जैसे it is found in air, water, soil, etc. It is also found inside living organisms found inside living organism लिखे या एनिमल ही लिखते हैं? एनिमल्स including humans। ह्यूमन बॉडी के, हमारे बॉडी में भी बहुत माइक्रोऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। It is also found on the surface of objects and living organisms। कोशिश कीजिएगा इस पॉइंट को पहले लिखिएगा, इसको बाद में लिखिएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले उसको भी लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए एक और, अब नेक्स्ट बात क्या है? अब हम लोग को देखना है मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोग को बात करनी है कि रफली ये तो इंट्रोडक्शन था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, इसके ब्रांच ऑफ साइंस को कहाँ पाया जाता है, ये क्या करता है, कुछ यूजफुल है, कुछ हार्मलेस है, कुछ यूजफुल है, कुछ हार्मफुल है, कुछ हार्मलेस है, मतलब कोई काम का नहीं है, मतलब कोई काम का नहीं है। आई एम नॉट सेइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंस, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो दिखता नहीं है आपको, मगर आपको हम बता देते हैं। इफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नॉट देयर, देयर विल बी नो रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट, एंड इफ देयर इज नो रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट, अगर चीजें सड़ेंगी नहीं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी में मिलेगा नहीं, और मिट्टी में अगर नहीं मिलेगा तो हमारे प्लांट को मिनरल्स कैसे मिलेगा, और प्लांट को मिनरल नहीं मिलेगा तो प्लांट फूड कैसे बनाएगा। तो आप ये समझ लीजिए, प्लांट को न्यूट्रिएंट और मिनरल चाहिए तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। कौन कौन है भाई मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखिए, पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंगी, तीसरा एल्गे, चौथा प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। आज हम यहीं पे वीडियो को खत्म करेंगे, हम कुछ लिखेंगे नहीं, बस एक रफ आइडिया आपको दे देंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। बैक्टीरिया, दे आर
यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, यूनि मतलब होता है वन, यूनि मीन्स होता है वन, सेल्यूलर मतलब होता है मेड अप ऑफ सेल। बैक्टीरिया आर यूनिसेल्यूलर मीन्स इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मतलब हमारे बॉडी में अगर मेरा वजन 60 kg है तो मेरे बॉडी में टोटल सेल कितने होंगे? 60 इंटू 10 टू द पावर 15, इतना सेल है मेरे बॉडी में। और मेरे बॉडी में ये जो सेल है वो सब अलग अलग काम कर रहा है। कुछ सेल आंख है, आंख बनाया, कुछ सेल मेरा नाक बनाया, कुछ सेल बॉडी का डिफरेंट पार्ट बनाया। सो डिफरेंट सेल्स आर देयर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प इन डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन टेकिंग ऑक्सीजन, एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम इज देयर इन आवर बॉडी, तब जाके हमारा काम होता है। ये सारे सिस्टम इन्हीं सेल से बने हुए हैं। बट यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है, वो अकेला सेल सब काम कर रहा है, फूड भी लेता है, डाइजेस्ट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, फूड को बाहर निकालता है। सो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, इट इज यूनिसेल्यूलर। ये बड़ा होता है किससे? वायरसेस से। वायरसेस से ये बड़ा होता है। ये यूनिसेल्यूलर होता है, ये बड़ा होता है, ये 3 शेप में आता है। रॉड शेप, इट इज ऑफ रॉड शेप, इट इज स्फेरिकल शेप और इट इज कॉमा शेप। ये कॉमा शेप का भी होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया इज ऑफ 3 टाइप, इज दैट इज बैसिलस, कोकस, विब्रियो। रॉड शेप को बोलते हैं बैसिलस, स्फेरिकल को बोलते हैं कोकस और कॉमा शेप को बोलते हैं विब्रियो। हम लोग देखेंगे वन बाय वन, जस्ट ऐसे ही कुछ आइडिया दे रहे हैं आपको हम। फंगी, फंगी जो है ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, ये मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है। यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, ये मल्टीसेल्यूलर भी हो सकता है। यूनिसेल्यूलर का एग्जांपल ईस्ट, ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंगी है। और फॉर एग्जांपल मशरूम, मशरूम दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेल्यूलर फंगी। सो बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हाँ मल्टीसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर मतलब एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, मगर इतना भी बड़ा नहीं। मतलब कुछ कुछ है, जैसे मशरूम को हम लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो आप कहिएगा कि सर ये दिख जाता है, तो ये मल्टीसेल्यूलर है, मगर कोई जरूरी नहीं है कि हर मल्टीसेल्यूलर चीज आपको दिखी जाए। सो फंगी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एल्गे, ग्रीन कलर का जो काई लगा होता है पानी वगैरह में, दैट इज एल्गे। प्रोटोजोआ, काला जार एक बीमारी होता है उसमें, और आप क्या कहते हैं, मलेरिया, मलेरिया होने के लिए जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे। सो बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब को तो हम एक साथ लिखे, मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज हम क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आज हम समय बर्बाद कर रहे हैं इसके लिए, इसके लिए देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। हम अभी बता दे रहे हैं आपको, आगे भी बताएंगे, मगर फिर भी थोड़ा सा बात बताते हैं। ये वायरसेस जो है इसको हम एंड वायरसेस लिखे हैं। हम चाहते तो यहाँ पे 5 दे के वायरस लिख देते, नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये लिविंग है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए इन चारों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। मतलब छोटा भी है और लिविंग भी है। वायरस जो है ये माइक्रोस्कोपिक तो है, छोटा तो है, मगर ये लिविंग नहीं है। वायरसेस आर नॉट लिविंग आउटसाइड द होस्ट, मतलब
जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, चाहे वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए या एल्गी के कांटेक्ट में, किसी के भी कांटेक्ट में आए, चाहे हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आए, किसी एनिमल के बॉडी के कांटेक्ट में आए, जब तक ये वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आता है तब तक ये बिहेव करेगा एज नॉन लिविंग, and when it come in contact with any living organism it behave as living organism. It will utilize, ये क्या करेगा, अगर मान लो एक बैक्टीरिया है, आपको एक समझाने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये एक वायरस है जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफाज वायरस। ये रियल है ऐसा पाया जाता है। दिस इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम वगैरह होगा, जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ये जो वायरस है इसमें भी कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा। ये क्या करता है, इस वायरस को इन्फेक्ट करता है। हम शुरू में बताए थे कि बैक्टीरिया जो होता है ये वायरस से बड़ा होता है, तो देख रहे हैं वायरस छोटा, बैक्टीरिया बड़ा। ये क्या करेगा, ये इसको टेक ओवर कर लेगा। टेक ओवर मतलब virus will control the bacteria and force bacteria to make new viruses। मतलब ये अपना रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये कांटेक्ट में आएगा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को फोर्स करेगा कि वो नया मतलब इस वायरस के जैसा नया कॉपी, मतलब इसका डुप्लीकेट बनाए, लाखों हजारों डुप्लीकेट बनाए। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। तो ये माइक्रोस्कोपिक है, ये चारों भी माइक्रोस्कोपिक है, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये चारों ऑर्गेनिज्म है। दैट्स व्हाई आई हैव सेपरेटेड वायरस। कुछ बुक में आपको ये सब एक साथ मिल जाएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये माइक्रोस्कोपिक है बट ये लिविंग नहीं है। हाँ, लिविंग बिहेव करेगा जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आएगा। सो आज भर के लिए इतना ही याद रखिएगा। मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा जाएगा तो बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। सो आगे इंडिविजुअली बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ हम लोग देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।